So hello and welcome back to AT English Tutorials. This is our first lecture for the English language, and till now you must have noticed me teaching literature basically for ICSE students class 9th and 10th and ISE students class 11th and 12th. But now I am also launching the language classes, and the syllabus which we will be covering will not be entirely of ISC students but a mix of language aspects that are important for the various competitive exams. So if you are in class 11th or 12th, if you are a 10th pass out, this video will be very helpful for you, because this type of exams, this type of language exercise that I'm going to take it up in today's video is basically asked in various competitive exams. If generally if you are going towards NDA, then there it is asked. Then your cat section, there also it is asked. So various exercises are being asked in various your competitive exams, and those sort of exercises, different types of exercises I will be teaching you here, the tricks and tactics, and then we'll be practicing some of the questions. And there will be another video coming which in which I will take the solved examples of the previous year question papers from various competitive exams. So in this way we'll prepare ourselves. This is not only helpful for your competitive exams, but will also increase and build up your vocabulary. At the same time, it will be also be helpful to in your home examinations. So yes, the first exercise that we are going to take up today is sentence arrangement and para jumbled questions. And basically, when you were in smaller kids, you were given a word, a jumbled word, and what you were supposed to do, you were supposed to rewrite all the terms, all the letters, but the order of the letters should be in such an extent that it should make a meaningful sense, a meaningful word. Same way here also, but here you are giving number of sentences, and then you have to form a new stanza, a new paragraph, which should have the correct order of the sentences. Basically 4 or 5 sentences are given, and you are asked to arrange those sentences in chronological order. So how we are going to do it, what are the tips that you should keep it in your mind, and what how you are going to approach to these type of questions, that I'll be telling you in this particular video. So let's get started. One more thing, you must have noticed me speaking only in English and sometimes in Hindi, but because this is language and making you understand the thing is an ultimate goal. So here I will be bilingual, I will be frequently speaking Hindi also, and just we'll go like that. So first of all, sentence arrangement and para jumbled questions. What type of questions are they? It involves rearranging a set of jumbled sentences into a logical and coherent, that is meaningful paragraph. These questions are commonly found in various competitive exams and aim to assess one's understanding of grammar, logic, and paragraph structure. So this was all about what type of questions they are, and now we come to how to what should be your approach towards these sort of questions. So first thing is that first tip or first key strategy for solving such questions is you always have to identify what can be the opening sentence, what can be the first sentence. Look for a sentence that introduces a new topic or idea without referring to a previous thought. So basically you are presented a thought, an idea, or a fact with the help of these 5 sentences. Whatever 5 sentences are given to you, all the sentence will be connected to each other, but the one which you feel like is independent and should be at the first place, you keep it aside and keep it at the first place. अब इतनी इंग्लिश तो आपने पढ़ी ही होगी if you are a 10th pass out कि आप first sentence easily identify कर लो. You have read number of stories, number of poems, so you should have
that much of idea that what can be the first sentence. करेक्ट. और प्रॉब्लम आती नहीं है फर्स्ट सेंटेंस में. फर्स्ट सेंटेंस कोई भी बता लेता है. द प्रॉब्लम कम्स when you are arranging the middle sentences. I mean आप पहला ढूंढ लोगे, आखिरी ढूंढ लोगे, लेकिन बीच वालों को अरेंज करने में दिक्कत आती है. एंड बेसिकली जो आपके वो कैट के क्वेश्चंस होते हैं, एनटीए के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको जो वर्ड्स मिलते हैं वो भी बहुत मतलब थोड़े अप टू द मार्क होते हैं, और दे आर काइंड ऑफ अ लिटिल डिफ़िकल्ट. एंड when your vocabulary is good, because the words they use are of high level, so for that you have to practice a lot. And secondly, your vocabulary should be strong enough to tackle those words, to understand what is being said. So anyhow, let's leave those topics and we come to the first point here. You have to identify the opening sentence, the first step. Second tip, you have to locate the concluding sentence, concluding statement. So I hope that this is clear. आपको पहला मिल जाएगा, आखिरी मिल जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाता है. If you have understood the vocabulary, if you have understood the meaning of the words, that is the condition. And for that there is no special strategy. It's just that you have to read and read again and read again novels and difficult languages, difficult words, so that your vocab is जब तक आप एग्ज़ाम दो तब तक आपकी vocab उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको कोई भी वर्ड आए तो आपको उसका मीनिंग पता हो. So now you have located the first sentence, you have located the concluding sentence. These are the first two steps that you need to be very particularly follow. And अब इन दोनों में से मतलब इन दोनों को कैसे आप अप्लाई करोगे वो सीख लेते हैं. उसके बाद दूसरी टिप्स पे भी आगे बढ़ेंगे. अभी इतना सीख लेते हैं कि हम पहला और आखिरी सेंटेंस कैसे विल फॉलो. सो एग्जाम्पल 1. So here an idea is being put forward. So let's read what are the given 4 sentences. After receiving the call, he packed his bags and rushed to the station. यानी पहले कॉल आया होगा. अब कॉल की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो दी होगी, तो ये पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता. द सडन न्यूज़ ऑफ अ फैमिली इमरजेंसी ब्रॉट अ चिल टू हिज हार्ट. तो यानी कॉल के बाद ये चीज़ हुई है, तो ये भी किसी ना किसी से कनेक्टेड है. तो ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन कंक्लूडिंग हो सकता है, क्योंकि इसके बाद का कंक्लूडिंग हमें नहीं पता क्या है. ही हैड बीन हैविंग अ गुड टाइम विद हिज फ्रेंड्स बट द फोन रैंग. अच्छा, अब ये पुराने वालों से तो कुछ कनेक्ट लग नहीं रहा है, तो ये फर्स्ट हो सकता है. द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव बट ही मैनेज टू कैच इट. अब जो हमने बी वाले को सोचा था, बी वाला हमने क्या बताया था कि इट इज़ नॉट अ फर्स्ट वन बट इट कैन बी अ कंक्लूजन. बट अब कंक्लूजन तो लास्ट वाला भी लग रहा है. द सडन न्यूज़ ऑफ अ फैमिली इमरजेंसी आई, उसके बाद ही तो वो ट्रेन पकड़ेगा. तो आपको क्या इससे कंक्लूजन मिला कि डी वाला फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट है, ये आखिरी में हो रहा है. पहले उसे न्यूज़ मिली होगी फैमिली इमरजेंसी की, तभी तो गया होगा वो ट्रेन को पकड़ने और जो भी मतलब ट्रैवलिंग के लिए. ये होगा कंक्लूजन की बात. यानी हमने अभी तक ये बताया कि जो लास्ट सेंटेंस है, जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है, दैट इज़ द D1. अब पहले सेंटेंस की बात कर लेते हैं. इसके पहले ही मैंने बताया था ही हैड बीन हैविंग अ गुड टाइम विद हिज फ्रेंड्स बट द फोन रैंग. और फ़ोन रैंक के बाद ही आफ्टर रिसीविंग द कॉल ही गॉट. एंड नाउ अपने आप ही आपके जो ऑर्डर है वो बनने लगेगा. क्यों? क्योंकि आपने पहला आइडेंटिफाई किया, लास्ट वाला आइडेंटिफाई किया, बाकी दोनों तो इन्हीं दोनों से कनेक्टेड होंगे ना. सो दैट वे यू हैव टू गो. सो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ओवर हियर इज द B1 and the conclusion wala statement is the D1. So yes, this is what I told you. Okay, we come to the third tip now. Recognize logical connections. Pay attention to pronouns, acronyms and transitional words like also, furthermore. Basically they are conjunction like words that link sentences and reveal the flow of ideas. तो जब भी आपको
इन 4 सेंटेंसेस के बीच में कहीं भी ऐसा कंजंक्शन जैसा वर्ड दिखे, ऑल्सो, फर्दरमोर, लाइक, तो आपको देखना है कि वो किस सेंटेंस से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो उसके पहले वाला और उसके बाद वाला भी कहीं हद तक आपको सेंटेंस मिल जाएगा। तो आपके पास बचा क्या फिर? बाकी के 1-2 सेंटेंस बचेंगे, एंड दैट यू कैन डिसाइड फ्रॉम द फ्लो ऑफ these 2 sentences that you have just find out. तो एग्जाम्पल 2 भी ऐसा ही है, इसको देख लेते हैं एक बार। द टीम डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अ न्यू स्ट्रैटेजी फर्दर मोर। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, ये वाला जो अभी मैंने बताया, दिस विल इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब ये ए से तो मुझे एज सच कनेक्शन इसका लग नहीं रहा है। दिस सी दिस strategy also involves streamlining operations. The company is facing increased competition. तो अब हम पहला सेंटेंस क्या बना सकते हैं? मुझे डी वाला थोड़ा सा इंडिपेंडेंट लग रहा है अपने आप में, तो क्या हम कह सकते हैं कि डी वाला पहला सेंटेंस है? बिल्कुल है। सो द कंपनी इज़ फेसिंग इंक्रीज्ड कंपटीशन। अच्छा, अब लास्ट वाला गेस करते हैं, बी। अब मुझे बी लग रहा है, लेकिन बी क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंक्लूड किया है कि जब ऐसा ऐसा हो जाएगा, उसके बाद एज अ रिज़ल्ट ये हमारी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करेगा, इसलिए मुझे लग रहा है कि दिस इज़ द कंक्लूजन, बी वाला, बी फॉर बॉल, बी वाला। तो हमने क्या सोचा कि डी वाला जो है वो इंट्रोडक्शन है, बी वाला जो है वो कंक्लूजन है। अब बीच में फंस गए ये ए और सी। अच्छा, अब फर्दर मोर के पहले क्या हो सकता है? Furthermore, this will improve efficiency. The team decided to implement a new strategy. This strategy also involves streamlining operations. तो क्या आएगा? बी से क्या कनेक्शन लग रहा है आपको? मुझे तो सी वाला लग रहा है। This strategy also involves streamlining operations. Furthermore, this will improve efficiency. पहले स्ट्रैटेजी का एक जो है फंक्शन बताया गया, उसके बाद furthermore यानी उसी के बाद एक और फंक्शन बताया गया फॉलोड बाय द वर्ड furthermore। इसीलिए हमने कहा कि बी से पहले जो है सी आएगा। अब हमने बी को आखिरी बताया था, बी के पहले सी आ गया, डी हमने फर्स्ट बोला था, तो सेकंड अल्टीमेटली क्या होगा? ए होगा। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू जज द ऑर्डर। अब ऑर्डर हमने क्या आया? डी ए सी बी, D for dog, C for cat, A for apple, and B for ball. So D C A B. So let's D A C B. It's the correct order. So D A C B is the correct order. Let's check the answer. The correct order is D A C B that I just told you. Coming on to some additional points, look for mandatory pairs, sentences that logically follow each other. It's just like the previous previous tip that I have stated. Use time sequencing. If the paragraph discusses an event, try to arrange it in chronological order. Eliminate irrelevant points. Sometimes what happens, they give you a set of 5 sentences, and one or even more, sometimes, very rarely, but sometimes they are not of that topic, they are irrelevant. So you can, if the options allows you to do, you can eliminate that irrelevant point. Now, अब इतने टिप्स आपको दिमाग में रखने हैं, इतने टिप्स से ही आपका काम बन जाना चाहिए. Now let's discuss some of the practice questions and then we'll put an end to this lecture. अब ये जो पहला एग्जाम्पल है, he decided to give up the life of a recluse. He had lived in his cabin for years and shunned all visitors. He finally felt the urge to come down and visit the village. He felt isolated and longed for human companionship. So that is why in the very starting of the lecture I said कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. अब जो बच्चे की वोकैब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो पहली बात तो रिक्लोज और शंट जैसे शब्दों का मतलब ही नहीं समझ पाएगा. एंड इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू गेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द words, how will he arrange these sentences? तो पहली बात तो आपकी वोकैबलरी आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जब ऐसे वर्ड्स आए तो आपकी उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए. तो अभी के लिए तो आई विल टेल यू द मीनिंग आई एम हियर, बट to prepare such type of questions,
You should have a strong vocabulary. I'm emphasizing on this point again and again. So this point has a important role to play here. So he decided to give up the life of a recluse. Recluse is a person who lives a solitary life. Solitary is, being alone all the time, and who tends to avoid other people. He had lived in his cabin for years and shunned all visitors. Shunned is like to avoid someone or something. And see, he finally felt the urge to come down and visit the village. He felt isolated and longed for human companionship. पहला सेंटेंस बोलता है कि पहले तो उसने एक वो रिक्लूज की एक लाइफ जी रहा था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि अब वो ऐसा नहीं करेगा. बी सेंटेंस जो कह रहा है वो एक अपने एक स्मॉल चैम्बर में ही रहता था, रह चुका है फॉर ईयर्स, और हमेशा अपने जो साथ वाले लोगों को भगा देता था, अवॉइड करता था उन्हें. सी वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि अब जब ये सब हो चुका है, ही फाइनली felt the urge to come down and visit the village. अब उसके अंदर सब लोग से मिलने की इच्छा जाग गई है, तो अब वो आया है नीचे, and he has came to visit the village. He felt isolated and longed for human companionship. उसे वहाँ पे isolated and longed for human उसे वहाँ पे isolated यानी अकेलापन फील हो रहा था, और वो लॉन्ग यानी डिज़ायर कर रहा था फॉर ह्यूमन कंपेनियनशिप. तो सीधी सी बात है कि ही हैड लिव्ड इन हिज केबिन फॉर ईयर्स एंड शन्ड ऑल विजिटर्स. ये आपको पहला सेंटेंस तो लग ही रहा होगा. क्यों? क्योंकि अब आप देखोगे कि जो ए वाला सेंटेंस है वो बी से कनेक्टेड है, जो सी वाला है वो ए से कनेक्टेड है, और जो डी वाला है वो बी से कनेक्टेड है. नहीं समझ आया ना? आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. पहला जो सेंटेंस है बी, ही हैड लिव्ड इन हिज केबिन फॉर ईयर्स एंड शन्ड ऑल द विजिटर्स, ये आपको इंडिपेंडेंट लग रहा होगा. जहाँ बात आई ए की, तो वो डी वाले से कनेक्टेड है. क्यों? क्योंकि जब उसने रिक्लूज की लाइफ छोड़ने के बारे में सोचा, तभी तो वो उसे आइसोलेट फील हुआ, और तभी तो वो नीचे आया, तभी तो वो उसने मतलब लॉन्ग फॉर ह्यूमन कंपेनियनशिप की. पहले उसने रिक्लूज की लाइफ छोड़ने का फैसला किया, फिर हम बताएंगे कि उसे आइसोलेटेड फील हो रहा था, एंड दैट इज़ व्हाई ही वाज लॉन्गिंग फॉर ह्यूमन कंपेनियनशिप. करेक्ट? एंड द रीज़न, क्योंकि उसे रिक्लूज जैसा फील हो रहा था, दैट इज़ व्हाई ही फेल्ट द अर्ज टू कम डाउन एंड विजिट द विलेज. सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट. ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए. बी जो है वो पहला पॉइंट है, और सी जो है वो लास्ट पॉइंट है. ऐसे ही समझ आ जाना चाहिए. अब बात आई डी और सी की, सॉरी डी और ए की. बी हमने डिसाइड कर लिया फर्स्ट है, सी हमने डिसाइड कर लिया लास्ट है. डी और ए में कैसे डिसाइड करेंगे? बी सेंटेंस क्या कहता है कि ही हैड लिव्ड फॉर इन केबिन फॉर ईयर्स एंड शन्ड ऑल द विजिटर्स. जो सी कहता है he finally felt the urge to come down and visit the village. इनके बीच में डी और ए हैं. he decided to give up the life of a recluse. तो ये तो सेकंड लास्ट में होना चाहिए ना. अर्ज जब उसे हुआ, जब वो विलेज से नीचे मिलने गया, उसके पहले ही तो उसने डिसाइड किया होगा कि भाई हम रिक्लूज की लाइफ छोड़ेंगे. ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब जो है ही फेल्ट आइसोलेटेड. पहले उसे मतलब आइसोलेट फील हुआ, और फिर मतलब पहले उसे आइसोलेट फील हुआ, वो ह्यूमन कंपेनियनशिप चाहता था, और फिर उसने रिक्लूज की लाइफ छोड़ने का फैसला किया. नहीं, पहले आपका आइसोलेट मतलब पहले आपका वो आइसोलेटेड फील करेगा ना, पहले वो चीज़ फील करेगा, उसके बाद ही तो वो डिसाइड करेगा. पहले क्या हम लोग पहले सोचते हैं ना कि अच्छा ये करना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं. तो पहले उसने फील किया, पहले उसने फील आइसोलेटेड किया अपने आप को. दैट इज़ वाई ही लॉन्ग फॉर ह्यूमन कंपेनियनशिप, and as a result he decided to give up the life of a recluse, followed by he finally felt the urge to come down and visit the village. And this is the correct order: B, D, A, C.
B. He lived in cabins for years and shunned all the visitors. Then D. He felt isolated and longed for companionship. A. He decided to give up a life of a recluse. And then C. He finally felt the urge to come down and visit the villagers. Then we come to another example. The first task is to identify the main idea. B. We can also find the opening sentence by looking for the starting point. C. Parajumbles are a test of logical reasoning. D. Then we can identify the concluding sentence. E. Then they test your ability to understand and organize information. तो पहला तो आपको देख के ही समझ जाना चाहिए कि जो आपका सी है वो इंट्रोडक्शन है. क्यों? क्योंकि वो सबसे इंडिपेंडेंट है. उसका जो कंटेंट है वो किसी पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है. उसमें यही बताया गया है कि वो चीज़ है क्या. कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाउन, तो हम ये पढ़ते हैं ना सबसे पहले कि नाउन होता क्या है. इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. या डायरेक्ट उस पर पहुंच जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड ऑल दीज थिंग्स. पहले तो ये पढ़ते हैं कि क्या होता है, और क्या होते है कि आंसर यहाँ पे क्या दे रहा है. सी वाला दे रहा है कि पैराजम्बल्स. व्हाट आर पैराजम्बल्स? दीज आर द टेस्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. तो ये पहला हो गया. फिर डी वाला, देन वी कैन आइडेंटिफाई द कंक्लूडिंग सेंटेंस. तो अब ये भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि अच्छा हाँ, इसके बाद कुछ तो हो ही सकता है, लेकिन अभी इसको एज अ लास्ट रखते हैं. सी, आई नो द करेक्ट आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग यू हाउ टू हाउ शुड बी योर अप्रोच टू दीज क्वेश्चंस. मैं आप लोग के पर्सपेक्टिव से इन क्वेश्चंस को आप लोग के सामने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो हमें पता चल गया कि सी जो है वो फर्स्ट सेंटेंस है, डी जो है वो आखिरी सेंटेंस है. अच्छा, अब पैराजम्बल्स बात हो गई कि क्या होते हैं. अब किस काम आते हैं पहले फिर तो यही लिखेंगे. तो ई, दे टेस्ट आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन. सी, इट्स जस्ट अ लॉजिक गेम. मैंने आपको टिप्स बता दी, बेसिक टिप्स हैं. अब उसको अप्लाई कैसे, कहाँ और कितने एक्सटेंट पे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग. मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, बट टू वॉक ऑन दैट वे एंड हाउ टू वॉक ऑन दैट वे, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो पैराजम्बल्स आर द टेस्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. देन they test our ability to understand and organize information. then फिर बचे क्या, ए और बी, क्योंकि डी तो हमने ऑलरेडी लास्ट माना हुआ. द फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. वी कैन ऑल्सो फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस बाय लुकिंग फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट. अब फर्स्ट टास्क यानी जब हमने बात कर ली कि क्या होता है, किस में हेल्प करता है, अब तो फर्स्ट टास्क ही आना है. तो अब हमने ए लिखा. डी हमने पहले ही कंक्लूडिंग मान लिया था, अब बचा क्या, बी. तो सीधी सी बात है, अब बी ही आएगा. तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, सी ई ए बी डी. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. वी कम टू द लास्ट एग्जाम्पल. दिस इज आई गेस द लास्ट एग्जाम्पल. नो, देयर इज वन मोर. सो ओके, फाइन. So this is the second last example. A, I packed my things. B, I went for a walk. C, I put on my jacket. The weather was cold. So jacket and cold is related somewhere. तो मुझे नहीं लगता ये इनमें से एक जो है इंट्रोडक्टरी हो सकता है, बट वी नेवर नो. लेट्स रीड बाकी के. आई पैक्ड माई थिंग्स, आई वेंट फॉर अ वॉक. अच्छा, वॉक भी मतलब हो सकता है पहला, थिंग्स भी हो सकता है. तो सी और डी में तो पक्का नहीं है कि मतलब ये ना ही कंक्लूडिंग है ना ही आपका पहला इंट्रोडक्टरी है. आई पैक्ड माई थिंग्स, आई वेंट फॉर अ वॉक. सॉरी, आई वेंट फॉर अ वॉक. ए और सी, आई पैक्ड माई थिंग्स, आई पुट ऑन माई जैकेट, तो ये दोनों एकदम कनेक्टेड है ना.
तो इनमें से ये कंक्लूडिंग या पहला तो नहीं हो सकता, करेक्ट। अच्छा, अब सी से डी भी कनेक्टेड है। आई पुट ऑन माई जैकेट, द वेदर वॉज कोल्ड। तो जब वेदर कोल्ड होगा तभी तो जैकेट डालेंगे, सीधी सी बात है। आई पैक्ड माई थिंग्स, आई वेंट फॉर अ वॉक। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? आई वेंट फॉर अ वॉक, तो सीधी सी बात है कि जब आप ये सब काम ख़त्म करके ही वॉक पे जाओगे, सो दिस इज़ द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। द वेदर वॉज कोल्ड, जैकेट इसी से कनेक्टेड है। आई पैक माई थिंग्स इसी से कनेक्टेड है। तो वेदर वॉज कोल्ड इंडिपेंडेंट लग रहा है अपने आप में। सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। बी वाला हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि दैट इज़ द कंक्लूडिंग वन। अब ए और सी में से पहला क्या आएगा? पहले उसने जैकेट पहनी, फिर उसने सामान पैक किया, एंड देन ही वेंट फॉर अ वॉक। सो कंक्लूजन क्या निकला? क्योंकि ठंड थी, उसके बाद क्या? उसके बाद उसने जैकेट डाल ली, क्योंकि ठंड थी, ही पुट ऑन द जैकेट। Then he packed his things and then he went for a walk. That is the sense. You understand how to, arrange these things? Another example. This is the final example, and then we'll end up today's session. Sophie wraps up singing performance. Registration form. Classical singers such as Sophie are being desired for a talent show. Sophie is invited for an audition. Sophie is a classical singer with a lot of experience. ये तो अपने आप में ही खुद आगे बढ़ के बता रहा है कि आई एम द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। सोफी हैज़ बीन चूजन, और ये भी अपने आप में बता रहा है कि भैया मैं हूँ कंक्लूडिंग। तो आपको ऐसे ही देख के पता चल गया कि डी है इंट्रोडक्टरी, ई है आपका कंक्लूडिंग। अब बचा क्या? बी ए सी, ए बी सी। अच्छा, अब सी, जब उसे ऑडिशन के लिए बुलाया होगा उसके बाद ही तो वो चूज़ हुई होगी। तो सीधी सी बात है कि ई से पहले सी होगा। अच्छा, अब बचे क्या? बी और ए और बी। क्लासिकल सिंगर्स सच एज सोफी आर बीइंग डिजायर्ड फॉर अ टैलेंट शो। अब जब आप क्रोनोलॉजी सोचो, पहले टैलेंट शो में बुलाया गया होगा। चलो उल्टा क्रोनोलॉजी देखते हैं। ई, क्योंकि हमने सबसे पहले ई ही डिसाइड किया था तो उल्टा ही सोच लेते हैं ना। फिर सोफ़ी को चूज़ किया गया, उसके पहले क्या हुआ होगा? उसके पहले उसे ऑडिशन दिया होगा, उस ऑडिशन के लिए बुलाया गया होगा। उसके पहले क्या हुआ होगा? उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा या टैलेंट शो में मतलब बुलाने के लिए अप्रोच किया गया होगा। सीधी सी बात है कि उसके पहले उसको डिज़ायर फॉर अ टैलेंट शो किया होगा ना, उसको बुलाया होगा कि आप आइए टैलेंट शो में। उसके बाद मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो सेकेंडरी प्रोसेस है, पहले तो उसको बोला होगा कि वी आर मेकिंग अ टैलेंट शो, सच सॉर्ट ऑफ शो, यू आर डिज़ायर्ड टू जॉइन अ टैलेंट शो। तो पहला मतलब आखिरी, सोफी हैज़ बीन चोजन। सेकेंड लास्ट, शी हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर एन ऑडिशन। थर्ड लास्ट, classical singers such as Sophie are being desired for a talent show। और थर्ड लास्ट फिर जैसे E is the second last, C she is invited for an audition is the second last। अब आपको क्या लगता है बी और ए में से कौन सा थर्ड लास्ट होगा? पहले वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेगी, उसके बाद ही तो उसे टैलेंट शो में बुलाया जाएगा। तो इसीलिए पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात आई। इज़ दैट क्लियर? मैं उल्टे वे में बता रहा हूँ। पहले आपको आपके दिमाग में लाया जाएगा कि दिस इज़ अ टैलेंट शो, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ टैलेंट शो। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अच्छा आप आइए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरिए एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट। तो पहले क्या आया? पहले यू हैव बीन डिज़ायर्ड फॉर द टैलेंट शो, then you are given the opportunity, the thing to to fill up the form। तो सबसे पहले डी आ जाता है, शी इज़ अ क्लासिकल सिंगर विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। फिर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरती है, फिर उसके बाद वो टैलेंट शो में जाती है। आई एम सॉरी, पहले वो क्लासिकल सिंगर होती है विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद उसे टैलेंट शो की खबर आती है यानी बी।
शी इज़ डिज़ायर्ड फॉर अ टैलेंट शो. उसके बाद शी you know she is over with all these forms and all. A, and then Sophie is being invited for an audition, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आती है कि उसे चूज़ कर लिया गया. तो क्रोनोलॉजी क्या हुई कि भाई पहले पहले क्या हुआ. पहले हमने बताया कि सोफ़ी एक लड़की है जो बहुत अच्छा गाना गाती है, बहुत अच्छा उसके पास एक्सपीरियंस है. फिर एक हम लोग एक शो बना रहे हैं, टैलेंट शो बना रहे हैं, जिसके लिए सोफ़ी को हम अप्रोच करना चाहते हैं. फिर उसने अपने सिंगिंग परफॉर्मेंस को रैप किया और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा. फिर उसको ऑडिशन के लिए बुलाया गया और फिर वहाँ से उसे चूज़ कर लिया गया. क्रोनोलॉजी आई. यू अंडरस्टैंड द ऑर्डर हाउ वी अरेंज इट. So this is all for today, and I hope that you all have understood the concepts. I have realized कि आप लोग को प्रॉब्लम हुई होगी बिकॉज़ कई बार मैं उल्टा चलने लगता था. दैट इज़ फ्रॉम लास्ट, मैं लास्ट से उल्टा आपको क्रोनोलॉजी बताने लगता था. फिर एकदम से मैं विदाउट इन्फॉर्मिंग पहले आप मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में फर्स्ट टू 1 2 3 ऐसे सीधा सीधा प्रोजेनी चलने लगती थी. तो उसमें आपको दिक्कत हुई होगी. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कई बार हमें पीछे से भी, यानी लास्ट सेंटेंस, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जो आपका ऑर्डर होता है वो देखना पड़ता है. अगर आपको मतलब सीधा सीधा आप नहीं बना पा रहे हैं, आप उल्टा करें या सीधा करें, कंक्लूजन वही निकलना है, ऑर्डर वही आना है. सो इट्स योर विश हाउ यू टेक इट. सो दीज आर द टिप्स. ऑल्सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, उतनी ही आपको वर्ड्स की मीनिंग समझ में आएगी. एंड दीज वर जस्ट अ चाइल्डिश सेट ऑफ एग्जाम्पल्स. वाई? बिकॉज दिस इज just our first class, just the first thing that we are learning. So I didn't wanted to keep it so harsh on you, so difficult on you. बाकी अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं इसमें. बच्चे सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं. यहाँ पे तो ऐसे एक दो वर्ड्स थे, जो एक ही एग्जांपल था जिसमें कोई कठिन वर्ड्स थे, रिक्लोज और वो शंड वाला. बट जो उसमें आपके एनटीए और इन सब में आते हैं, कॉम्पिटिटिव में आते हैं, बच्चे तो वर्ड्स तो छोड़िए, पूरा पूरा सेंटेंस की मीनिंग उन्हें नहीं समझ में आती है. वाई? क्योंकि उन्होंने वोकैब उस लेवल की स्ट्रॉन्ग की ही नहीं. एंड हाउ टू बिल्ड अप योर वोकैब? रोज़ पढ़िए, रीड नॉवेल्स. वर्ड नहीं समझ आ रहा, गो चेक योर डिक्शनरी, चेक योर मोबाइल्स. आजकल तो मोबाइल हैं, बहुत ईजिली आप वर्ड्स की मीनिंग खोज सकते हैं. बट आई सजेस्ट कि मतलब डिक्शनरी लेके चलिए, क्योंकि आप जब डिक्शनरी में एक वर्ड की मीनिंग खोजते हैं, आपको बहुत सारे वर्ड पे आपकी नज़र पड़ती है. और दिस इज़ द वे योर वोकैबुलरी गेट्स stronger and stronger. Work through more challenging examples, gradually increase the complexity of the paragraphs as you gain confidence. Then review and learn. ये तो आपको पता ही है कि आपको धीरे धीरे करना ही पड़ेगा. And this is the way you will be mastering this para jumbles. So thank you everyone, good luck, keep practicing, and I'll try to get one more video in which I will be discussing the PYQs of the various competitive exams, and that will not be as easy as this. There it will be number of words that you don't know, number of sentences that you will not be able to judge, to understand, complex English. But this is the way, and this is the thing that we have to learn. So thank you, good luck to everyone, and this is here we end up. Thank you.